Welcome to Utkarsh Speaks. Today we're going to talk about the relationship differences between Gen Z and millennials, as I've seen. I think even with millennials, probably the first half of millennials, like 85 to 92 ish, 93 ish, something around that, I think they're the only people who are actually capable of doing a long term marriage. I think that, like, speaking at scale here, of course, I don't want some idiotic Gen Z to come up and explain to me how they don't understand statistics. I'm not talking specifically about you. I'm talking about like at scale, like in general. I feel like Gen Z really struggles with social relationships and social norms. मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों को 15 मिनट बिठा दिए उसके बाद इनको पैसे देने पड़ेंगे टू सोशलाइज विद पीपल. ऐसा लगता है कि इसे आधे घंटे बैठ गए 15-20 मिनट बैठ गए उसके बाद ये लोग का मतलब पित्ता नहीं नपता. ऐसा लगता है कि अरे कि मतलब इनको लगता है कि कैसे हम करें. आई थिंक इनकी सोशलाइजेशन बैटरी ही आउट है. मे बी बिकॉज द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स और मे बी इट वॉज जस्ट दैट दे वर ब्रॉट अप इन अ डिजिटल एज. इन दिस सेंस आई कंसिडर एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ मिलेनियल्स टू बी वेरी ब्लेस्ड. क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को तब भी सोशलाइज करना पड़ता था. मतलब जब तक हम लोग का स्मार्टफोन और वो सब बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है तब तक तो हम लोग को सोशलाइज करना ही पड़ता था. अभी ये जेन अल्फ़ा वेल्फ़ा हैं. मतलब जहाँ इन लोग को 15 लोगों के साथ बिठा दो ये अल्फ़ा से बेटा हो जाते हैं साले. एंड आई थिंक दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन द रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो मतलब मैरिज. थिंग्स लाइक मैरिज एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज़ लाइक वन हेक ऑफ अ कमिटमेंट आई शुड से. यू नो क्योंकि बड़ा ही इनके यहाँ जो है मुश्किल होता है यार शादी निभाना. स्पेशली मैं बच्चा बच्चा होगा तो उसका तो 18 साल का कमिटमेंट है, 18-20 साल का. तुम मतलब छोड़ के भी कहीं और मुंह नहीं मार सकते. तुम जाओगे तो बच्चे को फर्क पड़ेगा. It will definitely affect the child. Like I have personally face to face actually seen. Was brought up in India, so for good or for worse, people would stick around together. At least the upper middle class, rich class, they would stick around. And it wasn't because they had. It wasn't because like without they can't afford to not stick around. Hi millennials. It's not like they couldn't afford, like the later half ones can probably have still that issue, but the ones before, like Gen X, I think they could stick around. uh, Maybe parampara bolo, pratha bolo, whatever societal norms. But even people who did not have societal norms, I think they stuck around a little more than nowadays. So that I think that affected the children in a positive way most of the time. I mean, unless तुम्हारे घर पे मारपीट हो रही, चीख पुकार हो रही है, I then I think it is good to that a child has both mothers and parents, not for any other reason other than the fact that we evolved that way. Like it takes a village to raise a child. And I think like for example, most of us who were like, especially until early 90s, we were brought up in an environment where like even our neighbor used to take care of us. There's a healthy community, sense of community, which is not there anymore. And I think that definitely affects children to the point that when I come to United States, I see that people here are very individualistic. And I mean, you can call it freedom or whatever the fuck you want, but respectfully, your kids are fucked. Although I see them, they struggle with relationships, like I think they really do. And so I know that if you have single parents, then it definitely you can see the impact of that. I mean, even I know in internet they call it daddy issues or whatnot for women. But to be very honest with you, at scale, I don't want another dumb fuckers telling me ki, oh, I was brought up with a single mother and look at how well I turned out. Yes, you turned out very well, good for you. But at scale, I think as a society, and in society things work at scale, they don't work individualistically. At scale, at a social level, like I think single parent households kind of struggle a little bit with with kids. Like I feel like especially if the dad isn't around, etc. I see that the kids go either like really bad in this one direction or really bad in another direction. There's some stability missing, especially when it comes to the kind of partners that they choose. That's something I've noticed here very often. I don't know, like you can even tell like some guy if he has like mommy issues, you can tell.
like, brought up by a single mom, a mom who probably didn't like him, whatever, or was like, around, going around a little bit, whatever. Call me old fashioned if you want, but I feel like that affects kids. And so, in just like single parents and single comparatively affects people compared to, say, a healthy family, especially when you are in your early childhood. I think in the same way, I feel like social interaction also affects. Like, I feel like Gen Z and Gen Alpha, I think they struggle. मतलब 15 मिनट से ज़्यादा इन लोग को बिठा दो, इनकी फटके फ्लावर हो जाती है. आई मतलब थोड़ा ऑकवर्ड कर देते हैं, पता नहीं. आई डोंट नो, देयर समथिंग आई हैव सीन अबाउट दिस पीपल. इनको एक मूवी सामने चला दो तो ये बकवास कर लेंगे, लेकिन कोई काम हो तो बातें कर लेंगे, बट अदरवाइज ऐसे एक रेगुलर इंटरेक्शन से नहीं हो पाता. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन अ social setting or even in, say, a relationship setting. And how that translates into a relationship is, I don't think ये लोग मतलब इतना, ये 18 साल एक साथ रह सकते हैं. मतलब मुझे इनके बड़े थोड़े मुश्किल लगता है इनका चांस. इवन मैं तो कहूँगा लेटरल मिलेनियल्स ऑल्सो, 94 95 के बाद वाले, पता नहीं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी जो एक्सीडेंटल हो गई तो हो गई, वरना तुम लोग को बच्चे ही पैदा नहीं करने. मतलब मतलब लोग कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब है. भाई 1930s में फैमाइन पड़ता था, तब भी लोग 12-12 बच्चे बना देते थे. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक डजन का सेट बना दो, लेकिन यू आर इन वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एराज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. I understand that there are struggles कि हाँ finance नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, but honestly people have managed to make babies even when they were much worse. I think it's something much more. I think it's just it's a refuge that people take when they say कि अरे हाँ economy ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है. I think it's also the fact that कि तुम लोग उतने ready नहीं हो. और if somebody also tells me, आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ, बट समबडी टेल्स मी कि अरे हाँ उस टाइम पे तो जो है मम्मी पापा को कोई मतलब नहीं होता था, पापा को बच्चों के नाम नहीं याद रहते थे, पापा मम्मी को पीटते थे, ये होता था, वो होता था. अबे यार, तुम्हारे तो नहीं होता ना, तुम तो नहीं करोगे ना, लेकिन तुम इकोनॉमी को तो नहीं देख सकते, तुम तो नहीं करोगे ना. तो जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे केस में अप्लाई नहीं होता है. कौन कह रहा है तुम्हें 12 बच्चे पैदा करो, लेकिन 1-2 बच्चे तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं करो, क्योंकि आई थिंक तुम लोग के लिए रिलेशनशिप में रहना ही बड़ा मुश्किल है. इट सीम्स लाइक दैट्स व्हाट आई फील लाइक. गोइंग लाइक इन अ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज difficult for you people to manage, especially with the onset of dating apps. I think relationships have gone to shit. I'm not talking about the exceptions, I'm talking about the norms, you know. मतलब हमारे टाइम पे होता था, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मतलब उनका कॉलेज से या हाई स्कूल से उनका चल रहा है, और फिर उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, ये चीज़ें होती थी हमारे टाइम पे. लेकिन तुम लोग के टाइम पे साला ऐसा लगता है कि मतलब स्मार्टफोन चेंज करने से पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज हो जाते हैं. एक तो इतने इतने सारे टाइप के शिप बना रखे हैं, नैनो शिप, पता नहीं अभी एक वो क्या कहते हैं, पीको शिप भी बन जाएगी फॉर बॉयज हु डोंट लास्ट दैट लॉन्ग. 6 सेकंड में बंदा ढह गया, पीको शिप हो गई. पता नहीं क्या क्या बकवास कर रखे हैं, नैनो शिप, सिचुएशन शिप, तो खैर मतलब क्या ही बोलें, बेवकूफ़ियाँ टाइप की. मतलब हु आर यू ट्राइंग टू फूल, you know. मतलब evolutionarily speaking, we weren't born to get into situationships and nanoships and whatever other kinds of ships you got, spaceships that you have discovered. But I feel like with the advent of sort of like, you can have sex with whomever you want, kind of thing. All these things have to come up, but I don't think biologically we have evolved to that point. Socially we have, but biologically we have not. And I feel like that in that sense, I think the early part of millennials are blessed because they got the best of both the worlds. Matlab, we got to live in a point, if you were born from late 80s to early 90s, you matlab, we have had the joy of actually playing with our friends, bahar jaake khelna. I don't know, I haven't found anything on the smartphone yet that compares to that joy that I felt as a child when I went out and I played. And you might say it's just me, but at least even to the people that I've talked to, they all feel that it is just not the same. I mean,
we I mean, it's a different kind of happiness, you know. I'm not trying to compare the happiness, but it's more like a different kind of happiness. Same thing I would say for LAN gaming. मतलब, you know, I think we were born right at the right time, क्योंकि we had LAN gaming too. मतलब, I have had the joy of sort of like being with my friends and sort of playing on the same LAN. We used to have like a local area network, like a LAN party, and like gaming Quake 4, Quake 3 on our on like, you know, as a gamer together. That's amazing. Like, there's nothing much I can compare to. From whether and it works everywhere, from like काउंटर स्ट्राइक से लेके एक टाइम था डेमो रैश, रोड रैश नाम के गेम आते थे, उस तक में बहुत मज़ा आती है व्हेन यू प्ले मल्टीप्लेयर लाइक टुगेदर. बट हमने बाहर भी खेला है. तो आई फील लाइक इन दैट सेंस वी वर रियली ब्लेस्ड. और आई थिंक अवर्स वॉज द लास्ट जनरेशन जहाँ मैरिज थोड़ी बहुत टिकी हैं. मतलब, मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे आसपास के फ्रेंड्स जो हैं मुझसे 3-4 साल बड़े हैं, या 3-4 साल 2-3 साल छोटे हैं, 4-5 साल छोटे हैं, तो हम उन लोग की शादियाँ टिकी हैं, यू नो. मतलब, उसके बाद तो पता नहीं क्या गंद मचा रखी है. तुम शादी करते ही क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता है. 2-3 साल में लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं. और अगेन आई एम टॉकिंग, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. मतलब, क्या चल रहा है. अच्छा, तुमने एक अमीर लौंडा पकड़ लिया तो वो तो तुम्हारा रिटायरमेंट स्कीम बना रही हो. सॉरी, स्कैम नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं. लेकिन रिटायरमेंट तुमने स्कीम बना रखी है, स्कैम बना रखा है, जो भी कर रखा है कि बच्चा पैदा करो, पैसा ऐठो. मतलब, पता नहीं क्या कर रखा है. बट आई फील लाइक द लास्ट जनरेशन विच काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डिड नॉट हैव दैट वॉज माइन. जहाँ पे वी हैड द जॉय ऑफ sort of like of having a wife and not just a liability, or having a husband and not just a whatever you want to call him for you, you know. मतलब, पूरे टाइम एक लगा रहता दिमाग पे. आई थिंक वी डेंट हैव दैट. एंड वी ऑल्सो वारंट एट अ टाइम कि मतलब घर में मारपीट हो रही है, हाथ मार उठा लिया, ये कर लिया. मतलब, जेन मिलेनियल्स के टाइम पे ये इतना, मतलब, यू नो, पीपल न्यू दैट इट. मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि चीज़ें कम हो गई एटलीस्ट इंडिया में. मतलब, यू नो, पीपल न्यू. जैसे अब मेरे एज के लोग हैं, हम लोग को पता है. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस वन. उससे पहले मैंने सुना होता बहुत था कि, यू नो, इट वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. लेकिन वुमेन वर सफिशेंटली एम्पावर्ड, नॉट टू एम्पावर्ड. मैन वर सफिशेंटली रिस्पॉन्सिबल, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब यू नो कि 2 फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है. मतलब, सफिशेंटली रिस्पॉन्सिबल. And it was a good balance. I think a lot of times good things happen in balance, you know, they're not in the extremes. But nowadays I feel like you guys have turned extremists almost. ना तुम लोग के रिलेशनशिप स्टेबल हैं. फाइनेंस को तो खैर अब क्या ही बोले. तुमने 2008 देख लिया, 2000 की कोविड देख लिया, सब कुछ ही देख लिया. तुम लोग जब, मेरे ख्याल से जब ग्रेजुएट हो रहे थे 10th 12th और इंजीनियरिंग, तुमने कोविड के टाइम पे की है, तो क्या ही बोले तुम लोगों को, जेन जी ऑनवर्ड्स. और अभी तो मुझे लग रहा है कि मतलब अंकल सैम के लक्षण ठीक नहीं लग रहे. तो ट्रम्प पता नहीं अगली बार क्या करेगा. पर सीरियसली यार, पता नहीं, मैं आजकल जो ये देखता हूँ लोगों की डेटिंग वेटिंग चीज़, एकदम मेरे को मतलब एक नंबर की क्यूटिया लगते हैं. लगता है क्या कर रहे हो यार, तुम कर ही क्यों रहे हो, छोड़ दो ना फिर. और मुझे लगता है आधी जेंसी ने छोड़ भी दिया है. मुझे लगता है बस ये हिला के सो जाते हैं. इनको मतलब कोई मतलब नहीं है इनको, ना इनको मतलब पता नहीं किस चीज़ से में इंटरेस्ट है. But I feel like, as you know, as the Gen Z use the words, you guys are cooked. Seriously. हम लोग का बस one saving grace that I've seen in Gen Zs is that they do not die for work. मतलब, अगर उनका दिमाग थोड़ा ख़राब है तो वो छुट्टी मार देंगे. You cannot tell these people कि अरे 15 घंटे काम करो. That is one thing which I think is good about Gen Zs. Like, they are very self-aware in that sense. We were also self-aware, but we didn't have the guts to stand up to how self-aware we were. But I've seen कि Gen Z in that sense are better. Good for them. And they are a lot more entrepreneurial minded, which is excellent. But हाँ, I mean, what is the point? वो कहते हैं ना, मतलब what is much of the point, जब तुम्हें और frankly तुम्हें और कुछ खास लाइफ है भी नहीं. मतलब, जो मैंने ज़्यादातर Gen Zs देखी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में मतलब यू नो कोई तुम, ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई 80% ऑफ यू आई हैवंट हर्ड कि तुम्हारी रिलेशनशिप 5 साल से ज़्यादा चली हो. मतलब, आई डोंट नो, somehow maybe it's just the company I keep or whatever it is, but I've barely heard कि Gen Z is having a relationship more than 6 years 7 years. पता नहीं. मेरे टाइम पे होता था कि ब्रेकअप्स होते थे, लेकिन तुम्हारे तो साले लिंकअप ही होते हैं. बस ब्रेकअप तो मतलब तब आएंगे ना जब लिंकअप से आगे कुछ ज़्यादा हो. बस वहाँ पे नीचे लिंक कर देते हो, बाद में अनसिंक कर देते हो,
पता नहीं क्या करते हो, बट मतलब और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, मेरे को लगता है छोटी छोटी सिटीज़ में भी यही बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। पता नहीं शादी वादी भी क्या चलता है नहीं चलता है, मतलब कुछ भी हो रहा है। ऑफिस में इतने अफेयर, इतने लोगों के अफेयर्स होते हैं ना, मुझे वही लगता है। मतलब हमारे एज के लोगों के भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारे एज के लेवल में क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 33 से 42 ईयर्स तक के लड़के मतलब तक के जो लोग हैं, मैंने एटलीस्ट मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से मैं सिर्फ एक दो का जानता हूँ उनका डिवोर्स हुआ है, बाकी का इतना नहीं हुआ है। लेकिन मेरे से जो थोड़े छोटे हैं उनका तो भाई मतलब बहुत मतलब लगता है कि अच्छा इनका भी हो गया, अच्छा उनका भी हो गया। मेरे जो मतलब पता नहीं, मे बी इट्स जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, that's what I thought actually, and then I looked up the statistics, and I realized statistically the number of divorces have exponentially risen, not linearly risen, exponentially risen, compared to say folks who were born मतलब who were born around my area, and you compare that to folks who were born say 6 years or 7 years later. मतलब the number of divorces are exponentially high now with those people. I actually had a discussion with this about someone who's from Gen Z, and they were like, अरे ऐसा नहीं है, वी आर वेरी सेल्फ ये वो, वी आर वेरी अवेयर, हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करते, वो नहीं बर्दाश्त करते। हम लाइक भाई हम भी नहीं बर्दाश्त करते हैं, मतलब मिलेनियल्स में भी अगर चीटिंग करो तो आई डोंट थिंक लड़की रहेगी। और जो छोटे गांव की जगह है वहाँ पे जेंजी वाली भी रह रही हैं चीटिंग के बाद भी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मिलेनियल्स जो है तुम्हारी मतलब वो जैसे वो दादी के टाइम पे होता था कि माँ की 4 जगह पापा मुंह मार के आ रहे हैं, तब भी वो वाली चीज़ आई डोंट थिंक मिलेनियल्स में। दे आर लाइक समवेयर एट द sort of at the balance, not in every way, but again at scale, you know, at scale I think they kind of were at the balance, and after that I don't know क्या हुआ. But I think that needs to be fixed, and I think the way to fix it actually is, एक बात तो है भाई, ये डेटिंग एप्स आई थिंक इज अ कर्स सीरियसली, बिकॉज इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अवेलेबिलिटी. आई थिंक दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ. डेटिंग एप्स ना, दे हैव कम्प्लीटली ruined it because it gives you, and स्पेशली मतलब गधैया रानियाँ बहुत सी होती हैं, उनको समझ नहीं आता कि हाँ तुम डेटिंग ऐप पे चली जाओगी तो तुमको 200-400 लड़के राइट स्वाइप मारेंगे, लेकिन हमें भी पता है और दिल ही दिल में तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हें क्यों राइट स्वाइप मार रहे हैं. तो ये मतलब उस चीज़ को यू कैन नॉट टेक दैट टू हार्ट. यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, आई कैन गेट अटेंशन वेन एवर आई वॉन्ट, बट यू कैन नॉट बी लाइक ओ आई कैन गेट अ हस्बैंड वेन एवर आई वॉन्ट. एंड द सेम थिंग हैपन्स फॉर गाइज ऑल्सो. गाइज में उल्टा है एक्चुअली. गाइज में मैंने देखा कि 80% लड़के हैं उनको लगता है कि वो कहीं के नहीं हैं, और वो 20% लड़के हैं जो मतलब टॉप के 20% बंदे हैं, उनकी मतलब क्या कहते हैं ना, वो टॉप 20% में है तो हर मौसम चेंज के साथ उनकी एक नई लड़की आती है, और वो टॉप 5-10% में है तो हर वीकेंड में एक नई लड़की आती है. तो लड़कों में थोड़ा मैंने देखा है कि ऐसा है कि मतलब हर मतलब 80% लड़कों को तो मेरे को लग रहा है पता नहीं मिल ही नहीं रहा है कोई, और मिल भी रहा है तो पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग. और जो बाकी 20% लड़के हैं जो मतलब सच में वो 6 फीट हाइट, 6 फिगर सैलरी, 6 और भी पता है क्या 6 होता है, तो मतलब हर जगह वो हर जगह छक्के मार के आ रहे हैं. ठीक है. तो बट इन शॉर्ट बोथ आर स्क्रूड, यू नो. पर पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 1900 में कोकेन था, ऐसे ही आज के ज़माने में इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स हैं. इट गिव्स यू लाइक दैट, क्या कहते हैं ना उसको, इट गिव्स यू दैट हाई, दैट डोपामिन हिट. कोकेन भी वही करता है, इट गिव्स यू लाइक दैट इंस्टेंट डोपामिन हिट. बट 1900 में तो कोका कोला में भी कोकेन था. आजकल मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कोकेन ओनली. मतलब इट्स जस्ट नॉट विजिबल, इट्स जस्ट वर्चुअल कोकेन, बट इट इज़ कोकेन. तुम अगर एक लड़की हो, तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तो इंस्टाग्राम इज़ बेसिकली कोकेन फॉर यू. क्योंकि मतलब तुम एक फ़ोटो डालो, मतलब तुम्हें 5 मिनट में 50 लाइक आएंगे. इट्स सच अ हिट कि यार मतलब पीपल मतलब मेरे फैन था भाई. तो बट इट्स अ लाई, क्योंकि फैंस पहले भी मतलब जो पहले की औरतें थी शायद उनके भी फैंस होते, बस ये है कि लकीली उनके इंस्टाग्राम नहीं था. तो आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे होपफुली पीपल विल सून अंडरस्टैंड कि जो लड़कियां हैं वो एवरेज भी दिखती है तो भी उनके 50-55 फ़ैन हो जाएंगे, और लड़के मैं कहूँगा टॉप 25% भी दिखते हैं तो भी उनके मुश्किल से 4 फ़ैन होंगे. लेकिन हाँ, वो जो लड़का है वो जो मतलब
वो क्या वो स्टडो का स्टड है, उसको सारी लड़कियां वो उसके लिए कम्पीट करेंगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि सारी लड़कियों का दिमाग में हो गया कि मैं 100 में से मैं सिर्फ मैं 10 लड़कियों पर स्वाइप करूँ, जो मतलब एवरेज से लेके अब एकदम सुंदर वाली हैं तब तक का। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न स्वाइप्स तो सभी के आ रहे हैं, रिटर्न अटेंशन तो सभी का मिल रहा है। तो इस चक्कर में जो है ना, मतलब इट्स टर्न इनटू एन इल्यूजन। जो टॉप के जो लड़के हैं वो भी मतलब पता नहीं कौन से जोन में रहते हैं, अब उनसे भी इनका भी एक से मन नहीं भरता। जो एवरेज लड़के हैं वो तो खैर क्या ही बोले, मतलब उनका। पर मुझे लगता है यही इस जनरेशन की हाल हो गई है। और उससे पहले डेटिंग ऐप्स जैसे इंडिया में कैसे 2016 2017 से पहले नहीं थी, इतनी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी पॉपुलर ऐसे वाला नहीं था। जैसे बैंगलोर में भी लड़के लड़कियों के ऐसे लिंक मतलब होते थे, एक आध बार कहीं कहाँ सुन ही देते थे कि इसका वन नाइट स्टैंड हो गया, उसका हो गया, बट ऐसा एकदम प्रेवलेंट नहीं था। और जैसे लॉन्ग अगर ये लोग उसमें रह लेते थे, लिव इन में रह लेते थे, तो देर वॉज अ डिसेंट चांस कि उनकी शादी हो जाती थी। मतलब देर एक्चुअली वॉज अ डिसेंट चांस कि उनकी शादी हो जाती थी। they sort of like they were trying to actually get to that point. And the whole reason मैं शादी के इतना towards या forward is has nothing, absolutely nothing to do with कि पुराने ज़माने में ऐसा था कि नए ज़माने में ऐसा है. It has absolutely nothing to do with that. The only reason that I actually emphasize on that is because I think it affects the kids. मतलब वो तो एक स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिक बात है कि ज़्यादातर बच्चे सिंगल हाउस होल्ड में मुश्किल होता है। तुम्हारे घर पे बाप नहीं है, तुम्हारे घर में माँ नहीं है, माँ कहीं और मुंह मार रही है या बाप कहीं और मुंह मार रहा है, इट विल अफेक्ट यू विदाउट क्वेश्चन एज अ चाइल्ड। आपके सामने तुम्हारे माँ बाप बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, इट विल अफेक्ट यू। अब मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू डेट, विच आई थिंक यू ऑल डू, तो तुम अगर डेट 3 साल 4 साल करने के बाद भी, तुम डेट करने के बाद तुम शादी करो, 2 साल बाद तो 1 साल में तुम्हारा बच्चा हो रहा है, दूसरे साल में तुम डिवोर्स हो रहे हो, तो मुझे लग रहा है तुमसे बड़ा चंपतिया कुमार श्रीवास्तव कोई नहीं है यार। मतलब इतने बेवकूफ़ हो तुम साले। तुमने 4 साल मतलब क्या बस मार रहे थे क्या, और कुछ कर नहीं रहे थे क्या? तुम्हें मतलब कॉमन सेंस नहीं है कि तुम इमोशनल शादी से पहले तुम देखो ना कि तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। तुमने डेट भी किया, तुमने 4 बार 5 5 साल डेट किया भाई साहब, 2 2 साल डेट किया तुमने, उसका तुमने शादी भी की। तुमने 4 साल डेट किया, तुम्हारे 2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। तुम कर क्या रहे थे भाई? वो 4 साल तुम क्या कर रहे थे? मतलब इंसान को समझने में मैं कहूँगा 6 महीने लगते हैं, मे बी 6 महीने मेरे को लगता है ना एवरेज लग जाते हैं। 6 महीने 1 साल में तुम्हें समझ में आया था कि इंसान कैसा है। उसके बाद भी अगर तुम कंटिन्यू कर रहे हो और फिर तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारे 6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम फिर सिस्टम में नहीं है ना, प्रॉब्लम लड़के लड़कियों में, प्रॉब्लम तुम दोनों में है। क्योंकि तुम 4 साल क्या मतलब क्या बकवास कर रहे थे तुम ऑनेस्टली। अगर तुम्हें इस चीज़ का है कि जो है क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है कि अरे हम लोग कंपैटिबल नहीं, अबे तो साले कंपैटिबल से ही शादी करो ना, वरना शादी मत करो, क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो? और तुम्हारे चक्कर में बच्चे और सफ़र करते हैं साले, बच्चा पैदा कर देते हैं 2 साल में 3 साल में, 1 साल में डिवोर्स हो जाता है उसके बाद। हाँ, पीपल चेंज, वो वाला अलग सिचुएशन होता है, लेकिन पीपल चेंज दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि people change, but people change gradually, and you have to, I mean the whole point of sort of like raising a kid together is you have to sort of like adjust. I think the problem isn't कि people change, the problem is you both like just can't adjust honestly. And like मतलब a kid brings extra responsibilities, you have to have the foresight for that, and people don't. ऑल एंड ऑल मुझे ये लगता है कि डोंट मतलब लर्न टू एडजस्ट। एंड इफ़ यू फील लाइक यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु जस्ट कैन नॉट एडजस्ट का मतलब ये नहीं कि सामने वाला तुम्हें थप्पड़ मार रहा है या तुमको यूजिंग सेक्स एज अ वेपन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट पीपल डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट यू एडजस्ट, लेकिन थुट्टा पुट्टा इधर उधर लड़ाई सबकी होती रहती है, ठीक है? मतलब कोई भी कपल है उसकी होती है। तुम अगर इतने सारे डिवोर्स एक्सपोनेंशियली कैसे राइज हो गए यार? मतलब आप मिलेनियल्स और जेनजी के बीच में, जेन अल्फा के बीच में जो एकदम स्पाइक हुआ है डिवोर्स का, क्या उससे पहले सब औरतें मारपीट खा के ही जो है रीत जाती थी? आई डोंट थिंक सो। 4 साल 5 साल में इतना ज़्यादा कैसे चेंज आ गया? आई थिंक पीपल नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैक्ट दैट दे आर पीसेस ऑफ शिट, फॉर द फैक्ट दैट दे मेड अ मिस्टेक। यू हैड द
luxury of dating someone, getting to know them very well, if that is so important, तो क्यों शादियाँ नहीं चल रही हैं? और उसमें भी मैंने देखा मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये लोग एक दूसरे का. लड़कियाँ हस्बैंड कोई मतलब बेवकूफ़ बोल मतलब भोंदू क्या क्या मैंने सुना है बोल रही हैं सबके सामने. लड़के हैं मतलब पता नहीं, जो कुछ लड़के मैं जानता हूँ स्पेशली जो लड़के बहुत अच्छा दिखते हैं वो करते भाई हो तो मतलब क्या ही बोले उनका, आज यहाँ मुँह मार रहे कल वहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है सब प्रेपिस या फिर तो ऐसा नहीं, इक्वल रिलेशनशिप नहीं है. अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ विक्टिम और अब्यूज़र के बीच में रिलेशनशिप होती है. पता नहीं ऐसा टाइप का मुझे लगता है कि मतलब या फिर तो वो वाले टाइप के लड़कों की शादी हो रखी है जो मतलब वो कहते हैं ना उनको बहुत बढ़िया आता है लड़कियों को नचाना, और या फिर तो वैसे लड़कों की हो चुकी है जो रामू काका है मतलब एकदम हाँ हाँ बोलो जो तुम बोलो वही सही. मतलब ऐसे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दे आर वर्किंग एज अ टीम. और ये चीज़ आप उसमें भी देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, द स्टेटिस्टिक्स दैट आई वुड एक्चुअली साइट, आई वुड पुट द स्टेटिस्टिक्स इन द comment or in a description, the statistics that I'm citing, instead of speaking it over here. But I don't think it has anything much to do with the women empowerment or anything, because if it was women empowerment then within 6 years women got so empowered कि अब divorces have skyrocketed. I think it has a lot to do with dating, मतलब ये online dating. I think it has a lot more to do with the fact that you people do not actually prioritize marriage, you prioritize your career. It's okay to have a career, it's not okay to prioritize it over your marriage. And if you think that you want to prioritize your career over your marriage, don't get married, dude. अगर तुम बस घर आके सोना है किसी के साथ, पता नहीं कुछ लोग तो वो भी नहीं करते मैंने सुना है, तो भाई तू शादी क्यों कर रहा है, छोड़ दे. काहे को मतलब फालतू में शादी कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, कोई सेंस बनता है क्या? You are just torturing the kids, honestly बोल रहा हूँ. That's all you're doing. You're just torturing your kids because they have to watch you both fight like fucking fools, or you both like go sleep around with someone else. ये सब बेवकूफ़ियाँ बस चल रही हैं. क्यों ट्रॉमा दे रहे अपने बच्चों को यार, मुझे तो नहीं समझ में आता. अगर इतना ही अगर तुम्हें इतनी खुजली है अंदर तो मत बनाओ, बच्चे मत करो रिस्पेक्टफुली. और अगर तुमको लगता है कि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो बहुत ही सोच समझ के काम करो, कहीं पे ही मुंह मत मारो. यू नो, आई डोंट नो, फील लाइक am I asking for too much, स्पेशली आजकल कॉन्डम वॉन्डम हो गया. यू हैव द राइट टू क्या कहते हैं एटलीस्ट टू सम लेवल कंट्रोल कि who you have a kid with. I'm not saying accidents don't happen, but even if accidents happen, sort of like, you know, unless you're like Catholic or something, you can control that. Why are you having a kid with someone that you frankly are having hate sex with? ये मतलब पता नहीं क्या क्या नए नए चीज़ें चल रही हैं. You hate your husband, somehow you have a child, like what the fuck are you doing? Same thing like with guys also, मतलब तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम कहीं और मुँह मार रहे हो, क्या कर रहे हो यार तुम? क्यों? क्योंकि 8 महीने तुमसे तुम पकड़ के नहीं रख सकते अपना. तो 8 महीने भी नहीं, 4-5 महीने होते हैं मुश्किल में, when you cannot like you know, तो 5 महीने भी तुमसे नहीं होता है, तुमको कहीं ना कहीं घुसानी है. आई डोंट नो. खैर, एंड ऑफ रैंट. बट the only way to deal with that is, one, we should ban dating apps. We really should. I think it's completely ruining society. Two, we need to teach people how to deal with porn. अगर मैं बोलूँगा बैन porn तो बहुत से लोगों की जल जाएगी, but I really think that it has a bad effect. मतलब I think some boys, they look at porn and then they think I can replicate it in bedroom, or मतलब I don't think it ever ends well. Some girls, मतलब they think कि मतलब, you know, like I can see that you're clearly pretending, and honestly it's pathetic that you're screaming. I don't know, मतलब, you know, even women, they look at porn and they have some idea. Instagram needs to be regulated, just like you regulate smoking and drinking, because I think it's turning into a very bad addiction.
and people need to learn to socialize more. There should be classes where people should be taught to socialize, because it's like we are biologically hardwired to socialize. Yeah, you cannot just ignore that part of you. You cannot ignore the fact that you get a rush of oxytocin if you keep having sex with the same person. Now we are rewarding people who actually in a sense are flawed. But if you can sleep with 23 men and not feel anything, you're not empowered. There's something fucking wrong with you biologically. That's what that means. But somehow those are the women who are like, who are this one. Like same like with guys, if you the guys जो बहुत ही अच्छे हैं ना, who are very good at manipulating, they are the ones who are winning. Sorry, but seriously, they are the ones who are winning. The guy जो सीधे साधे लड़के में जूते खा रहे हैं, जो actually में guys who know like how to manipulate women. Dude, if you can manipulate women, you're not a playboy. There's something fucking wrong with you. Because a regular human being, like manipulation shouldn't feel fun. At some point तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये बंदी भी ह्यूमन बीइंग है. तो अगर तुम 4 लौंडियाँ घुमा रहे हो, there's something wrong with you, dude. तुम 4 लड़कों के साथ सो रही हो, there's something wrong with you. Sorry. मतलब that's something you should fix. It's not something you should be proud of. But I think those are the people who are honestly living their life. बाकी सब लोग झेल ही रहे हैं. तो I hope that happens soon, and yeah, let's see.